Hello students. Today I brought for you students chapter polynomial class 9th part 5, in which I will discuss some of the problems based on algebraic identities and factorization. You see question number 1, if x plus 1 by x equal to 3, it is given find the values of x square plus 1 by x square, x cube plus 1 by x cube, x4 plus 1 by x to the power 4, x minus 1 by x square minus 1 by x square, x cube minus 1 by x cube, x to the power 4 minus 1 by x to the power 4. In this series, all type of problems, and just you have to find from the value of x plus 1 by x given is equal to 3. So let me start. First number, here we write x plus 1 by x equal to 3. And first of all, we have to find x square plus x square, then squaring both sides, squaring both sides. What do we get? X plus 1 by x whole square equal to 3 square. As you know, a plus b whole square का वैल्यू a square plus b square plus 2 into a into b. Here x square plus 1 by x square is equal to 9 minus 2. This goes in right side. And we get the final value of x square plus x square equal to 7. So this can be used for the other, somewhere it is required. Now question number 2, x cube plus 1 by x cube. With the help of x plus 1 by x equal to 3, this is given. And cubing both sides. We use cubing because x cube plus 1 by x cube. Here cubing both sides. Okay. So x plus 1 by x whole cube is equal to a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3 into a into b and a plus b into a plus b. You see, x cube plus 1 by x cube plus 3 into, and here x plus 1 by x equal to 3 whole cube, and here 3 3 is 9, 3 is 27 is equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 is 9. This 9 sent to left hand side, and we get x cube plus 1 by x cube is equal to 27 minus 9 is equal to 18. So here is the second x cube plus 1 by x cube. Now we have to find x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So just we have found x square plus 1 by x square somewhere in the question 1. X square plus 1 by x square. So from first question we get x square plus 1 by x square is equal to 7. Now squaring both sides. Because we do not find
x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 directly from x plus 1 by x. So using the value of x square plus 1 by x square equal to 7 and squaring both sides, x square plus 1 by 7 square, again a square plus b square plus 2 into a into b equal to 7 square 49. Here we get x to the power 4, 1 by x to the power 4 equal to 49 minus 2. We get x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equal to 47. So 3 parts of the question completed. Now reaching in the section 4 of question, first we have to find x minus 1 by x with the help of x plus 1 by x equal to 3. So first you know, as a minus b whole square, formula a plus b whole square minus 4ab. So x minus 1 by x whole square is equal to x plus 1 by x whole square minus 4 into x into 1 by x, and here x plus 1 by x equal to 3 whole square minus 4, 3 square 9 minus 4 is equal to 5. So this is the value of x minus 1 by x whole square. So x minus 1 by x equals to root under 5, negative. This is the answer for x minus 1 by x. Now question number 5. Here x square minus 1 by x square is equal to x plus 1 by x, a plus b into a minus b, and it is the 3 and it is the root 5. So here x square minus 1 by x square we have found. Now question number 6. X cube minus 1 by x cube. X cube minus 1 by x cube. That means x minus 1 by x whole cube or plus 3ab a minus b. Now here is the value x minus 1 by x root 5 whole cube plus 3 into x minus 1 by x, that means root 5. Root 5 cube, that means root 5 into root 5 into root 5, yani 5 root 5 plus 3 root 5, 8 root 5. So this part also completed. Now 7, that means x to the power 4 minus 1 by x to the power 4. So it can be factorized as x square whole square minus 1 by x square whole square, a square minus b square, a plus b and a minus b. Here the value of x square plus 1 by x square is equal to 7. In question number 1 I have found, and the value of x square minus 1 by x square, it is also found 3 root 5. 3 root 5. So this becomes 21 root 5. So there are 7 sections of the question number 1 and all completed. Now students, just see question number 2, which says find the values of the following. A, if x plus y plus z equal to 8, x y plus y z plus z is equal to 20,
Then find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So just I am giving the solution of question number A. We have x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. And you see here x plus y plus z given, that means this part given, and xy plus yz plus zx 20, that means minus xy minus yz minus zx equal to minus 20. So for this part just I have to try from this, यानी हम यूज करेंगे x plus y plus z is equal to 8 and xy plus yz plus zx equal to 20. So this means minus xy minus yz minus zx equal to minus 20. Now squaring this, squaring both sides of x plus y plus z equals to 8, we get x plus y plus z whole square 8 whole square. As you know, a plus b plus c whole square, that means the square of the trinomial x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx is equal to 64. Now x square plus y square plus z square plus 2 common, xy plus yz plus zx equal to 64. So we have from here x square plus y square plus z square plus 2, and this one is 20. 2 multiplied by 20 equal to 64. So we have x square plus y square plus z square is equal to 64. 2 20s are 40 minus 40. So we get x square plus y square plus z square equal to 24. Now just I am reaching and putting the value. Suppose this is in equation 1, and we know you can write. So from equation first, putting the value of x plus y plus z and minus xy minus yz minus xz and x square plus y square plus z square, we get x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, what is the value of x plus y plus z? 8 into, what is the value of x square plus y square plus z square? 24 minus 3 into x minus x, this one x square plus y square minus xy minus yz minus xz. That means this 3 is not required, only minus xy minus yz minus zx equals to minus 20. Somewhere it is minus 20, I have written here minus 20. Okay, so we write 20 only, and we get 24 minus 24 is equal to 32. So this is
one of the part of question number 2. Okay, now for second part, just start. Again we use the same theory for question number B of question number 2. So for B एक्स वाई जेड ना होके ए बी सी है, तो वी हैव ए प्लस बी प्लस सी 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35 एंड टू फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. So we know that a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. But we have these two values are to find this. So now squaring both side of both sides of a plus b plus c equal to 9, we get a plus b plus c whole square is equal to 9 square. And we know square of trinomial a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to 81. A square plus b square plus c square, what is the value? 35. So put the value of this whole 35 plus take out 2 common, ab plus bc plus ca is equal to 81. Now ab plus bc plus ca, 81 minus 35 and ab plus bc plus ca इक्वल टू 11 में से 5 6 एंड 7 में 3 4 बाई 2. सो वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23. सो दिस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 23. ओके, एंड from equation first, suppose, so put the value of a plus b plus c, a square plus b square plus c square and minus ab minus bc minus ca. We get, हमें जो फाइंड आउट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. इसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी 9 यूज़ करेंगे एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए हम यूज़ करेंगे जो वैल्यू आया है हमारे पास 35. ये तो दिया ही हुआ है, तो ये 35 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो ये माइनस 23 दैट मीन्स ओनली 23. ओके, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दैट मीन्स ओनली प्लस 23.
So in this way we have 9 into 5 minus 3 2, 3 minus 2 1, that means 108 is the answer we got for second section of the question number. Students, now हम क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, जिसमें 6 अलग तरह का प्रॉब्लम्स है, ये सभी एक तरह का नहीं है, मिला जुला मिक्स फैक्टराइज है। हमने इसको आपके लिए लाया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडेंटिटीज़ का यूज करते हुए इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखते हुए कि हमें क्या स्टेप्स इनके लिए रखना है। सबसे बड़ा है स्टेप्स। आप जितने स्टेप्स को सही करके लिखोगे मार्क्स उतने मिलेंगे। यहाँ देखिए x टू द पावर 8 है माइनस y टू द पावर 8, तो ये दोनों इवन पावर, ये ध्यान रखना है इवन ऑड, ये भी ध्यान रखना है प्लस माइनस। अगर माइनस में है और ये अगर इवन है तो इसको पहले स्क्वायर यानी जैसे होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर का 4 का पावर बने, ये फार्मूला नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर क्या है कि आप इसको देखिए, जिसे फैक्टराइज आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें इसको इस तरह से, और इसे लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर साथ में माइनस 2ab, जिससे कि अगला फैक्टराइज का स्टेप्स बन जाएगा। स्टेप्स बढ़ाना है फैक्टराइज। यहाँ पर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं हम क्या कि ये तो स्क्वायर में है ही, इसको √2xy होल स्क्वायर दे सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये √2xy होल स्क्वायर। ये आगे स्टेप्स में फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसके लिए परेशान ही नहीं होना है। ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी ए माइनस बी में फाइनली वो फैक्टराइज्ड हो गया। यहाँ एक थोड़ा सा सोर्स बचा है फैक्टराइज का, कि इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो ये ए हुआ प्लस बी, फिर ये ए हुआ माइनस बी, अगेन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन एक्स प्लस वाई, अगेन एक्स माइनस वाई। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप इसको थोड़ा सजाएंगे तो सजा करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहला नंबर आप रखिए तो x माइनस वाई, फिर रखिए x प्लस वाई, फिर रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
फिर रखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy। फिर रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy। जब आप इतना स्टेप्स करेंगे तो आपका फैक्टराइज कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पर हैं हम लोग। तो इसके सॉल्यूशन से पहले हम लोग क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x को किसी दूसरे वेरिएबल में लिख लेते हैं। फिर इस y को पुट करेंगे तो y माइनस 1 माइनस 20, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 आएगा। फिर जैसा फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके 5 4 जा माइनस 5y प्लस 4y। यहाँ से y कॉमन निकल करके बाहर आएगा तो y माइनस 5 प्लस 4y माइनस 5। यहाँ से y माइनस 5 बाहर निकल करके कॉमन आएगा दोनों से, तो y प्लस 4 होगा। अब y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। पुट y मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर फैक्टराइज का मौका मिल गया। 5 को क्या है 1 इंटू 5 माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ये 2 2 जा 4 प्लस 4 x माइनस 5 प्लस 1x माइनस 5 x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ x प्लस 1 x माइनस 5 और यहाँ 2 बार x माइनस 2 आया। इस तरह से x प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 2 का स्क्वायर, ये जो है आंसर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर देखिए फैक्टराइज में ही x पर पावर 12 माइनस y टू द पावर 12 है। ये इवन में है, इसको हम आपको लिखना है x स्क्वायर का x6 का होल स्क्वायर माइनस y टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको कहा कि अगर ये इवन हो और ये माइनस में हो तो आपके पास मिलेगा x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 का a प्लस b फॉर्म, x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6 का a माइनस b फॉर्म। यहाँ से बोला था कि अगर ये इवन भी है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहला काम करेंगे कि क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर होल क्यूब, प्लस में है इसलिए, माइनस में रहता तो क्यूब का स्क्वायर करते, जैसा कि अभी करेंगे। और यहाँ वाई स्क्वायर का होल क्यूब, और ये इवन और माइनस है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते ही हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास यह ज्यों का त्यों रहना है।
ये x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ इनके फार्मूला फैक्टराइज में होते हैं। x प्लस वाई डायरेक्ट तो इसका फार्मूला ही होता है, जो फार्मूला हमने यूज़ किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन्हें अरेंज करना है सिर्फ, तो सबसे पहला नंबर आता है x माइनस वाई, दूसरा नंबर x प्लस वाई, तीसरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फोर्थ नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड फिफ्थ नंबर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दे सकते हैं, यहाँ भी कोई बात नहीं है। और इन द लास्ट एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस तरह से हमारा थर्ड नंबर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम x टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 का फैक्टराइजेशन जो 4 नंबर में दिया है, मैंने बताया है कि अगर यहाँ इवन है और बीच में माइनस है तो इसको स्क्वायर में ही करेंगे फैक्टराइज्ड, जिससे आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और इसके लिए जो भी फार्मूला बना हुआ है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारा अरेंजमेंट करना है इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 4 हो गया, अब 5 को भी हम कर ही लेते हैं। 5 नंबर कहता है x पर पावर 6 प्लस y पर पावर 6। मैंने बताया पहले भी कि जब यहाँ पर पावर इवन है और प्लस है तो हम इसको स्क्वायर का क्यूब लेना बेहतर करेंगे, y स्क्वायर क्यूब। तो इससे क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी अगेन ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम रह जाता है। ये एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, इसको यहीं तक करके छोड़ दिया। अब नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर को भी इस स्पेस में हम कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। गौर करने की बात है कि ये ए क्यूब है, ये 3a स्क्वायर बी में लिखा जा सकता है, ये प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी अगर हम +1 -1 कर दें, यानी एक्स क्यूब प्लस 3, ये इस तरह से एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x 1 स्क्वायर
प्लस 1 का क्यूब प्लस भी कर दें और 1 का क्यूब माइनस भी कर दें तो ये हमारा सही रह जाएगा, जैसा है वैसा ही। अब यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 क्यूब का फील्ड बन जाता है और ये -1 क्यूब -1 और -7 -8, जिसे लिखा जा सकता है x प्लस 1 का होल क्यूब -2 का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला जो यूज़ होता है वह है a माइनस बी, ये a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल आता है x माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर एक बार 2x प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर 4। अगेन स्टेप आगे ही जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x यानी प्लस 4x 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, और इस तरह से हमारा इनके जो भी 6 सेक्शंस हैं उनको मैंने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0, तो आपको प्रूव करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू फाइनलाइज द सॉल्यूशन। वी हैव, जो हमारे पास में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमें इस दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 से, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से या नॉन ज़ीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। सो हमें यहाँ नीड है 2 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम इधर आते हैं 2a स्क्वायर पाते हैं प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 2 इंटू 0। अब यहाँ है कि 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये ग्रुप हमने बना लिया। इसी तरह से b से एक b बचा है और c से दोनों बचा है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये माइनस 2bc दूसरे ग्रुप में रख लिया, और तीसरा a बचा है और 2c से c बचा है। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है b माइनस सी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है c माइनस ए होल स्क्वायर 0। जैसा कि जानते हैं कि कभी भी स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर क्या नहीं हो सकता है? निगेटिव नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली when each of the term is equal to 0 as a square of any number
कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव होता तब ना, मान लीजिए कि 2 प्लस होता है और 1 माइनस हो जाता, हो सकता था 3 + 2 5 और -5, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द टर्म इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी को 0 होना पड़ेगा, c माइनस ए को 0 होना पड़ेगा, दैट इज a इक्वल टू बी होना पड़ेगा, b इक्वल टू सी होना पड़ेगा, c इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b इक्वल टू c, सो हैंस proved. So students, I completed question number 4 solved. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0, तो आपको प्रूव करना है a इक्वल टू b इक्वल टू c। So just I am going to start to finalize the solution. We have, जो हमारे पास में है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हमें इस दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 से, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से या नॉन ज़ीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। सो हमें यहाँ नीड है 2 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम इधर आते हैं 2a² पाते हैं प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 2 × 0। अब यहाँ है कि 2a² प्लस a² लिखा जा सकता है, 2b² प्लस b² माइनस 2ab, ये ग्रुप हमने बना लिया। इसी तरह से b से एक b बचा है और c से दोनों बचा है, तो b² प्लस c² और ये माइनस 2bc दूसरे ग्रुप में रख लिया, और तीसरा a बचा है और 2c से c बचा है, तो c² प्लस a² माइनस 2ca। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी है, a माइनस b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है b माइनस सी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है c माइनस ए होल स्क्वायर 0। जैसा कि जानते हैं कि कभी भी स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर क्या नहीं हो सकता है? निगेटिव नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली when each of the term is equal to 0 as a square of any number can't be नेगेटिव होता तब ना, मान लीजिए कि 2 प्लस होता है और 1 माइनस हो जाता, हो सकता था 3 + 2 5 और -5, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द टर्म इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस b को 0 होना पड़ेगा, b माइनस c को 0 होना पड़ेगा, c माइनस a को 0 होना पड़ेगा, दैट इज a इक्वल टू b होना पड़ेगा, b इक्वल टू c होना पड़ेगा, c इक्वल टू a, this implies a equal to b equal to c, so hence proved. So students, I completed. Students, question number 5 जो कहता है कि if x² - 1 is a factor of
ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. Then prove that a plus c plus e equal to b plus d equal to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इसका फैक्टर है और इसका फैक्टराइज भी होगा, तो लेट हम लोग उस बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को p ऑफ x में लेते हैं ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और इसको gx लेते हैं, g ऑफ x। इसके फैक्टराइज x प्लस 1 x माइनस 1, तो gx फैक्टर होगा, सिंस gx इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज यहाँ देखिए दो जीरो है, एक x प्लस 1 अगर 0 तो एक माइनस 1 0 हुआ एंड एक x माइनस 1 0 तो एक 1 0 हुआ। दैट्स वाई p1 भी 0 है और p माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल p1 निकालते हैं। p1 इज इक्वल टू a 1 टू द पावर 4 प्लस b 1 क्यूब प्लस c 1 स्क्वायर प्लस d 1 प्लस e। ये 0 आ गया, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन p ऑफ माइनस 1 निकालेंगे, ये भी 0 है, दैट मीन्स a माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस b माइनस 1 क्यूब प्लस c माइनस 1 स्क्वायर प्लस d माइनस 1 प्लस e इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है a माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस d प्लस e इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e और प्लस a माइनस b प्लस c माइनस d प्लस e इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस d कैंसिल। सो हियर 2a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 0। सो a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 0 बाई 2 0। अब ये वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग a प्लस सी प्लस e इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 0 है ही दिया। यहाँ से निकालेंगे a प्लस c प्लस e प्लस b प्लस d इक्वल टू 0, ये 0 प्लस b प्लस d इक्वल टू 0, सो b प्लस d ऑल्सो इक्वल टू 0। हमने क्या देखा कि b प्लस d भी 0 आ गया, हेंस इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड। सो यू नो थर्ड दिस वन एंड दिस वन फोर्थ। So hence from third and fourth we have a plus c plus e equal to b plus d equal to 0। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस के एक कंपोजिशन को हमने किस तरह से लेकर के और बनाने का प्रयास किया। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कम से कम शुरू से अंत तक इसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जहाँ भी दिक्कत आए उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल करके भेजें, मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की हर संभव कोशिश करूँगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत